Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Yeah, good morning. So, in the first part, we'll continue with that doubts in NEET paper. So, I think we discussed up to 26. So, is there any doubt in question number 27? नीट का पेपर में और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Yes, sir, but it's 37. I have doubt in question number 37. Okay. Yeah. So the resultant of forces F1 and F2 is resultant means nothing but addition of forces. So over here you can write this resultant force will be equal to 4 I cap plus 6 I cap, that is going to be 10 I cap, and minus 3J plus 8J. So we can take it as 5J cap. Correct. Yeah. So this is the vector. Hmm. Now we can find out the magnitude because दो vector form में दिया है and in two cases they are given the magnitude. Yes. Yeah, right. I got it. So this will be equal to under root of 100 plus 25, under root of 125. Okay. So that is going to be 5 root 5. 5 root 5. 5 root 5. Yes. Yeah, okay. So question Or- number 31. It's number 31. Yeah. It's given that a body of mass root 3 kilogram is suspended by a string to a rigid support. A body is pulled horizontally by a force F until the string makes an angle 30 degree with the vertical. And the value of F and tension in string R. So here it is given that a body of mass root 3 kilograms suspended by a string to a rigid support. The body is pulled horizontally by a force F until the string makes an angle 30 degree. So the meaning that we can just represent that something like this. Over here, if you are having an object of mass M and we are exerting some force F horizontal, so that this string is making an angle 30 degree with respect to the horizontal. So the situation is something like this. Sorry, 30 degree with the vertical. The value of F and tension the string is. So our aim is to find out what about the value of this F and what about the value of tension and the string. So over here you can write weight of this object mg is going to act in downward direction. Again, in a situation we know that the net force should be equal to 0. So we can resolve all the forces into its components. So component of this F along this direction or tension along this direction, as this angle is 30 degree, this angle is also going to be 30 degree. So this can be written as something but T cos 30 degree, and this can be written as something but T sine 30 degree. Yes. Now we can say that the net force towards left should be equal to net force towards right. Yeah. That means T sine 30 should be equal to F, and T cos 30 should be equal to nothing but mg. Now if you are going for equation number 1 divided by equation number 2, this T and T get cancelled. Sine 30 by cos 30, that is going to be tan 30. So we can write tan 30 will be equal to F divided by mg. So we can find out the value of this F, because tan 30 is nothing but 1 divided by root 3. So we can write the value of F is going to be mg divided by root 3. Now we can put the value of M over here. The value of M is given as root 3 in question. G it is 9.8, yeah, 10 divided by root 3. So the value of F is going to be 9.8. Now once we got the value of F, then we can find out the value of tension also. From this equation you can write T is equal to F divided by sine 30, and we got the value of F as something but 9.8 divided by sine 30 is going to be 1 by 2. So this is 1 by 2. So this is basically 2 into 9.8 or 18.6. 19.6. 19.6 will be the value for it, and this is going to be 9.8. Okay. Is it clear? Yes. So question Bolo beta, question 35. 35. So 33. Okay. Question number 35, it is given that two equal forces of magnitude B each angle
angled first at 60 degree, later at 120 degree, the ratio of magnitude of their resultant is. The ratio of magnitude of their resultant is. Okay, two equal forces P, each angled at first means initially वो 60 degree पे था, अभी हमने 120 degree कर दिया. So ratio of their magnitude, the ratio of their magnitude of their resultant is. So we can use that equation when two forces are same magnitude. So we'll use that equation 2a cos theta by 2. है ना? तो फर्स्ट केस में थीटा का वैल्यू 60 दिया है. So this is going to be 2a cos 60 divided by 2, that is cos 30. And 2a cos 30 is nothing but root 3 divided by 2. So we'll get the answer as nothing but root 3 into a. In second situation, again if you are using the same equation 2a cos theta by 2, in second situation the value of theta is given as nothing but 120. So 120 by 2 it is 60, and the value of cos 60 is 1 by 2. So we can write this will be equal to nothing but a. So the ratio will be root 3a divided by a ka ratio. That means they are in the ratio root 3 is to 1. Got So it? 34. Yeah. In question number 33, it is given that the resultant of two forces, 2 Newton and 3 Newton, is root of 19, the angle between the forces. So over here, 2, 3 and root of 19 are given, and our aim is to find out what about the value of angle between them. 2, 3 and resultant is root of 19. So we can go for normal equation, that is r square is equal to a square plus b square plus 2ab cos theta. So r square means 19, a square means 4, b square means 9, 2 into a is 2, b is 3 into cos of theta. So we can find out what about the value of cos theta over here. So this is going to be 13 plus this is 612 cos theta. So this is 6 is equal to 12 cos theta, or you can write the value of cos theta will be equal to 6 divided by 12 or 1 by 2. So the value of theta is going to be 60 degree. Got it? So 34. Yeah. I'll discuss about question number 34. If the angle between two vectors of equal magnitude P is theta, magnitude of difference of vectors is. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना बेटा. When two vectors are having same magnitude, equation क्या है subtraction का 2a sin theta by 2 है ना. Yeah. ठीक है, बहुत सारा टाइम में बोला है, हमेशा याद रखना है when two vectors are having same magnitude, addition होगा 2a cos theta by 2, subtraction होगा 2a sin theta by 2, and 120 डिग्री पे ऐड करे तो सेम रिजल्टेंट मिलेगा, 60 डिग्री पे सब्ट्रैक्ट करे तो भी सेम मिलेगा. There will be lot of question based on this concept. और बोलो बेटा. So 43. It is given that the horizontal and vertical component of forces are 8 and 15 respectively. The forces. अभी normal है, इसका horizontal component is given as 8 and vertical component is given as 15. So if you are going for resultant of these two, so we can write it is just 18 8 I cap plus 15 j cap. है ना बेटा? Yeah. तो this resultant क्या मिलेगा? Under root of 8 square plus 15 square ही मिलेगा ना? Pythagoras. Yeah, Pythagoras. और any other question? Question number 44. Question 42. Okay, question number 42. It is given that the horizontal and vertical component of vectors are 20 and 30. ये कल ही डिस्कस हो गया था. Yeah, angle made by the vector with the horizontal is. तो horizontal vertical दिया है, tan theta का टर्म में लिख देना. तो this is Yes, theta, ये हो गया 20 और ये हो गया 30. और बोलो. Question number 44. 44. 4. The particle has an initial velocity and acceleration, the speed after 10 seconds. ये भी हमने डिस्कस किया बेटा. Just लिखना है v vector is equal to u vector plus u plus at, a vector into time.
So u vector is 6 I cap plus 8 j cap plus a vector is 0.8 I cap plus 0.6 j cap into time, that is 10. इसको multiply करके just add करना है ना? So this is going to be 6 I cap plus 8 j cap plus 8 I cap plus 6 j cap. है ना? So we'll get as nothing but 14 I cap plus 14 j cap or 14 root 2 resultant magnitude. है ना? और Sir, sir, बोलो बेटा। 39. 39. It is given that 39. yeah, if the difference of two unit vector is also a unit vector of unit magnitude, magnitude sum of two unit vector is magnitude of sum of the two unit vector is. बेटा फिर से same concept है, हमेशा याद रखो, two unit vector मतलब दोनों का magnitude same है. So difference of two unit vector is also a unit vector. मतलब दो vector subtract करके आपको same vector मिलेगा when angle between them is, बोलो angle क्या होना चाहिए? 120. No, addition में 60, 120 में 60. मिलती है, 60 60 degree. subtract Yeah, किया. difference 60 degree. 60 degree. Yeah, 60. So the magnitude of sum of vector is, तो इसका magnitude find out करना है, तो क्या लिखेगा? 2a addition 2a cos theta by 2. There is 2a into cos of 60 by 2, cos 30. Cos 30 is root 3 divided by 2. And a का value 1 दिया है, unit vector दिया है. So final answer क्या मिलेगा? root 3 मिलेगा ना? Sir, 40. The resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller of the forces. The angle between the two forces is. So first we can draw. अभी देखो perpendicular दिया है, तो already हमने discuss किया है, कोई भी question में perpendicular दिया तो we can definitely draw a right angle triangle. So resultant of two forces, one double the other. एक force को आप A मान लो और दूसरा force क्या हो गया? 2A हो गया. तो one double the other. तो ये हो गया हमारा resultant. The resultant of two forces, one double the other in magnitude, is perpendicular to the smaller forces. The angle between the two forces is. So this is perpendicular to the smaller forces. And RM is to find out the angle between them. Is it the angle between them? No. No. This will be the angle between the vectors. So RM is to find out the value of this theta. So first we can find out this theta. Let's say it is x. So we can go for cos theta because we know adjacent side and hypotenuse. Cos x is, adjacent side is a, hypotenuse is 2a. 2a. So cos x is 1 by 2. So x is going to be 60 degree. तो ये 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा? 180 minus 60, that is 120. Got it? और कुछ क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 42. The horizontal and vertical component of vectors are, ये बोला ना बेटा, horizontal component is 20, vertical component is 30. So ये हो गया हमारा resultant vector. The angle made by the vector with respect to horizontal, theta. So what is tan theta? 3 by 2. है ना? Same thing we can write with respect to cos theta or sin theta. Yes, sir. Yes, sir, understood. Yeah. Sir, बोलो. sir, 45th question. Two forces are in ratio 5:2. Maximum and minimum of their resultant are in the ratio. बेटा हमने दो फोर्स को ऐड कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 7 हो सकता है ना? एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 5 minus 2, that is 3. Yeah. So they are in the ratio 7:3. Okay, sir. Maximum is always a plus b, minimum is always a minus b. Okay, sir. Thank you. Okay. Yes, sir. Now we'll discuss about your doubt which are related to that Graph. graphical representation. Okay. Yes, sir. तो बोलो इसमें कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? Sir, 19th one. level 3 question 18. इस CQ में कोई क्वेश्चन में डाउट है? ग्राफ में Yes, sir. बोलो. Yes, sir. Wait a minute. Yes, sir. Sir, question number 28 and 29. It is 31 also.
Take that question number 28. It is given that velocity displacement graph of a freely falling body is. So freely falling body means, I think you are having idea that about freely falling body means an object is dropped and it is moving only Free under fall. the effect of gravity. That is known as the Yes. freely falling body. Okay. Yes. So RM is to find out the or draw a graph which is showing the relation between velocity and displacement. तो हमने velocity displacement graph तो draw नहीं किया था, तो हमने time के हिसाब से graph draw किया था. तो आपको कोई भी ग्राफ में अगर कोई भी दो वेरिएबल के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है, सो जस्ट रिमेंबर दिस बेसिक कंसेप्ट. आपको y और x के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है. तो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट अबाउट द रिलेशन बिटवीन y एंड x. दैट मींस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू n. ये n का वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट ग्राफ. ओके, तो पहले देखना है ए एन का वैल्यू क्या हो सकता है. मतलब एन का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, नेगेटिव वैल्यू हो सकता है, infinity हो सकता है, -1/2 हो सकता है. It can have any values. Okay, now just remember that if the value of n is equal to 1, मतलब y is directly proportional to x raised to 1 आ गया, then you will get a linear graph, then you will get a straight line when the value of n is equal to 1. Okay. Now if the value of n is greater than 1, मतलब y is equal to x square हो गया, then we'll get a curved line something like this. इसको x raised to 2 हो गया तो हम लोग इसको बोलते हैं कि parabola. x raised to 3 हो गया, 2 से ज्यादा है, then we'll call it as hyperbola. Okay. And अगर n का value, तो this is for when n is greater than 1. Next होता है अगर n का वैल्यू 1 से कम है बट 0 से ज्यादा है, मतलब मान लो x raised to 1/2 मिला, 0.5 मिला, then the shape of this curve will be something like this. इसको भी हमने hyperbola ही बोलता है. Okay. So this is for when n is less than 1 but greater than 0. 0 से ज्यादा है but 1 से कम है. Now if the value of n is less than 0, अगर नेगेटिव वैल्यू है, मान लो y is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज़ टू -1 मिला है, तो जो ग्राफ है वो ऐसा होगा. इसको बोलते हैं कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एंड दिस इज नथिंग बट व्हेन n इज लेस देन 0. ओके, तो जस्ट रिमेंबर दिस केसेस व्हेन n इज 1, n इज ग्रेटर देन 1, n इज लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, एंड n इज लेस देन 0. अभी ये सबका नेगेटिव, मतलब ये सबका मिरर इमेज आएगा. अगर मैंने x एक्सिस में अगर मान लो एक मिरर रखा है, तो ये सब इमेज कैसे दिखेगा, ऐसा शेप में होगा. इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x रेज टू n, अगर नेगेटिव ऑफ x रेज टू n है, तो ये सबका मिरर इमेज आएगा. फॉर दिस इज फॉर n इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0. ये हो जाएगा फॉर n इज इक्वल टू 1. एंड इसका मिरर इमेज आपको ऐसा मिलेगा फॉर n इज ग्रेटर देन 1. तो और कुछ इसका जो मिरर इमेज है वो आपको ऐसा मिलेगा व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन 0. समझा? ये सब ग्राफ का मिरर इमेज इधर मैंने ड्रॉ किया है. तो व्हेन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x रेज टू n एंड व्हेन n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू n. तो कोई भी ग्राफ में अगर शेप पूछा है तो we'll use this technique to identify the shape of that curve. तो पहले आप ये सब ग्राफ ड्रॉ कर दो. ठीक है, just draw this one. बोलो. Sir, can you explain this again? Yeah. आप पहले इसको ड्रॉ कर दो. I'll explain once again.
हो गया, ड्रॉ किया? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So once again, I'll explain it. In physics, in lot of situation, they will ask to draw a graph between these two or any two variables, and they'll ask to find out whether the graph is going to be a straight line, whether it is going to be a parabola, whether it is going to be a hyperbola, something like that, or rectangular hyperbola, etc. So how we'll come to know that? What about the shape of that curve? So if you are having a graph between y and x, so always y, there will be some relation between this y and x, then only we can draw the graph for it. So ऐसा हो सकता है relation between y and x is y is equal to 5x. So we can write y is directly proportional to 5 constant है, तो we can write y is directly proportional to x. तो जो ग्राफ का शेप है वो डिपेंड करता है ये x का पावर क्या है, ठीक है? तो ऐसा भी हो सकता है y is equal to 5x square, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखेगा तो y is directly proportional to x square, तो ये जो पावर का वैल्यू 2 हो गया, तो x क्यूब हो सकता है, x raised to -3 हो सकता है, x raised to -1 हो सकता है, x raised to 0.1 0.5 हो सकता है. Okay, so depends upon that the shape of this graph is going to change. Okay, so कोई भी ग्राफ का शेप कैसे होगा वो आइडेंटिफाई करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करने से पहले y और x में रिलेशन पता होना चाहिए. y is directly proportional to x raised to n. जो n है वो 1 हो सकता है, 1 से ज्यादा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, 0 हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है. ओके, अब ये n के ऊपर डिपेंड करेगा व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ. तो y is equal to, अगर n का वैल्यू 1 हो गया, सो वी आर गोइंग टू गेट अ स्ट्रेट लाइन. अगर n का वैल्यू 1 है, ये जो y is directly proportional to x बोलता है और x raised to 1 बोलता है, तो when n is equal to 1 we are going to get a straight line. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. आपने 10th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन. व्हाट इज द इक्वेशन फॉर अ स्ट्रेट लाइन? y is equal to mx plus c. ठीक है, तो इसमें c है वो कांस्टेंट होता है, ये m क्या होता है? Slope. Coefficient of x. या तो m होता है स्लोप ऑफ दिस कर्व. ओके, तो हमने जो dy by dx बोला ना वही है, बट आप लोग को तब तक ये पता नहीं था इसलिए स्लोप नहीं बोला होगा, तो ये जो m है वो स्लोप होता है. अगर c कांस्टेंट है तो m भी कांस्टेंट रहता है, so we can write y is directly proportional to x raised to 1. That's why we are getting a straight line. Now अगर n का वैल्यू x raised to, मतलब n का वैल्यू 2 हो गया, मतलब y is directly proportional to x square हो गया, तो आपको जो ग्राफ का शेप है वो ऐसा कुछ मिलेगा, उसको बोलता है कि पैराबोला. ठीक है, अगर मैंने x raised to 3 करेगा तो ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा, x raised to 4 करेगा तो ग्राफ का शेप ऐसा कर्व होते जाएगा. ओके, तो इन जनरल हम लोग ऐसा ही लिखता है, we will get a curved line if the value of n is greater than 1. समझ में बात? Sir, Now, this is parabola. x is equal to मतलब नॉर्मली y is directly proportional to x square होता है ना, उसको पैराबोला बोलता है. ओके, अगर 2 से ज्यादा है या और कुछ वैल्यू है तो हम लोग उसको हाइपरबोला बोलता है. समझा? Yes, sir. नाउ n का वैल्यू अगर 1 से कम है तो कर्व ऐसा रहेगा. When the value of n is less than 1, मतलब ऐसा y is directly proportional to x raised to 0.5 ऐसा कुछ हो गया, या y is equal to root of x हो गया, तो ग्राफ का शेप ऐसा रहेगा. एंड अगर n का वैल्यू 0 से ज्यादा है, देन 0 से कम है, when n is less than 0 मतलब नेगेटिव वैल्यू है, then we are going to get a rectangular hyperbola like this. समझ में बात? इसमें कुछ डाउट है? No, sir. Sir, n less than 1 में क्या बनेगा? n less than 1 है और greater than 0 है, तो ऐसा शेप ऐसा रहेगा. सर इस शेप अगर को क्या n कहते का हैं? वैल्यू, हाइपरबोला.
हाँ इसको भी हाइपरबोला ही बोलता है, इसको भी हाइपरबोला ही बोलता है, ठीक है। या सर, और लेस इसको देन 0 को भी वही बोलते हैं। लेस देन 0 मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू सर माइनस उसको 1/2। क्या, उस स्लोप को क्या बोलते हैं? इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता है, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। व्हेन नॉर्मली वो हम लोग यूज करते हैं व्हेन x इज व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज -1, तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है, ठीक है। सर तब n खाली ग्रेटर देन 1 होगा तो पैराबोला होगा। n ग्रेटर देन 1 है 1 तो हाइपरबोला भी हो सकता है, पैराबोला भी हो सकता है। वो n का वैल्यू 2 है तो हमने एग्जैक्टली पैराबोला बोलता है। ओके सर। अगर 3 है तो हाइपरबोला बोलता है, मतलब 1 से ज्यादा है 2 नहीं है तो, ऐसा समझा। यस सर। या ये सबका मिरर इमेज आएगा। अभी आप सोचो मैंने जो x एक्सिस है इसमें एक मिरर रखा है, इसके मिरर रखे तो ये सब का इमेज हमको कैसे दिखेगा, वो शेप में होगा इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x रेज टू n का। गॉट इट। मतलब ये जो ग्राफ का मिरर इमेज है आपको इधर ऐसा दिखेगा, इसका जो मिरर इमेज है आपको इधर ऐसा दिखेगा, इसका जो स्ट्रेट लाइन का मिरर इमेज आपको इधर ऐसा दिखेगा, इसका जो मिरर इमेज आपको ऐसा दिखेगा। अगर नेगेटिव आ गया तो ये सबका नेगेटिव वैल्यू आएगा, समझा। ओके अभी ये कंसेप्ट यूज करके हम लोग इसको एनालाइज करना है। तो पहले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में दे आर आस्किंग द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कोई भी ग्राफ में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट दिया तो कौन सा टर्म फर्स्ट पूछा है, फर्स्ट दिया है वो हमेशा y एक्सिस में ड्रॉ करना है, कौन सा टर्म सेकंड दिया है वो हमेशा x एक्सिस में ड्रॉ करना है। तो उसमें वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है तो वेलोसिटी y एक्सिस में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस से होना चाहिए। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट अबाउट द शेप ऑफ दिस कर्व। उसके लिए v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s रेज टू n लिखना है। अभी देखना है वो n का वैल्यू क्या होता है, देन वी कैन डिसाइड व्हाट शुड बी द शेप ऑफ दिस ग्राफ। गॉट इट। तो अब देखना है कंडीशन क्या है। तो इसमें कंडीशन क्या दिया है, condition it was given that velocity displacement graph of a freely falling body। freely falling body का meaning है it is moving under the effect of gravity। तो इसका जो acceleration है वो acceleration due to gravity होगा और downward direction में होगा। तो इसका velocity और displacement के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो a v और s में कौन सा रिलेशन है, कौन सा इक्वेशन है, acceleration velocity and square is equal to 2a। yes तो v square is equal to u square plus 2 into a into s। assume that when it is dropped initial velocity was 0, so क्या मिलेगा, v square is directly proportional to 2 into a into s मिलेगा। या इसमें जो a है वो g हो गया, o भी constant है, that means we can write v square is directly proportional to s हो गया। तो हमको v is directly proportional to s raised to n का टर्म में लिखना है। तो v square is directly proportional to s means v is directly proportional to क्या रहेगा, s रहेगा, हाँ s raised to 1/2 रहेगा। गॉट इट। तो आप देख सकते हैं v और s में क्या रिलेशन हो गया, ये s is directly proportional to v square ऐसा हो गया ना, मतलब स्क्वायर का टर्म आ रहा है। तो स्क्वायर का टर्म आ रहा है और इधर v is सॉरी n का वैल्यू क्या है 1/2 आ रहा है। सो we can say that yeah this is going to be s is directly proportional to v square, so we can say that this is going to be a square का टर्म आ गया ना, तो it's going to be a parabola। सर पैराबोला या हाइपरबोला? हाइपरबोला ना। नहीं v is स्क्वायर का टर्म आ रहा है ना बेटा, मतलब आप 1/2 को स्क्वायर मतलब v square is directly proportional to s या s is directly proportional to v square, सेम ही चीज हो गया ना। We want the value of s power। we can write s बेटा y का पावर, एक मिनट y is directly proportional to x square is same as like x is directly proportional to y raised to 1/2, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। हाँ सर समय बाद या तो फिर सर इसके पैराबोला और power is हम लोग जो 1/2। ग्राफ डिफरेंस नहीं रहेगा। वो ग्राफ कैसे हम लोग कौन सा एक्सिस में ड्रॉ कर रहा है वही डिफरेंस होगा।
मतलब अगर आपने ग्राफ को रिप्रेजेंटेशन करेगा तो ग्राफ कैसे रहेगा, ग्राफ का जो शेप है, अगर v और s का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफ का शेप क्या होगा, ऐसा रहेगा। समझा? मतलब n का वैल्यू v और s का ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो n का वैल्यू हमको क्या मिला, 1/2 मिला ना, n का हाँ, वैल्यू 1 से कम है तो द ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। So this is hyperbola or parabola? दिस इज पैराबोला बिकॉज ओके बेटा मैं बताता हूँ, वैल्यू लेकर ड्रॉ करता तो आपको पता चले मतलब मैंने क्या बोल रहा है। Before this, अगर आप this नहीं सर वो समझा, अरे, बस हाइपरबोला अरे। कैसा दिखता है इसमें। एक 2 मिनट सुनेगा? 1 मिनट आप होल्ड करो बेटा। y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू 1/2 का ग्राफ में हम लोग ड्रॉ करें तो वो सेम ही दिखेगा, ओनली हम लोग एक्सिस को चेंज कर रहे हैं। अगर आप y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करेगा देन आपको ग्राफ ऐसा दिखेगा। समझा? एंड x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y रेज टू 1/2 का ग्राफ ड्रॉ करेगा तो सेम जो चीज है वो ऐसा ड्रॉ करेगा। समझा? दोनों हाइपरबोला ही है बट हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, एक्सिस के हिसाब से उसको चेंज होता है। समझ? दैट इज ओनली वन डिफरेंस। दोनों पैराबोला ही उसको रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बट वन इज विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, अनदर वन इज विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। दैट्स ओनली वन डिफरेंस। तो सर हाइपरबोला कैसा दिखता है? y is directly proportional to x square। ओके तो आपने x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू आप 1 पुट करो तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। x का वैल्यू 2 पुट करो तो y का वैल्यू 4 मिलेगा। x का वैल्यू 3 पुट करो तो y का वैल्यू 9 मिलेगा। तो आपको जो ग्राफ है वो ऐसा होगा। ठीक है? इसको हम लोग x का जो वैल्यू 2 है, y इज इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसा टर्म में आ रहा है, उसको पैराबोला बोलता है। अगर मैंने x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एक्स रेज टू 3 लिखा तो x का वैल्यू मैंने 0 पुट करा तो 0 मिलेगा, 1 पुट करे तो 1 मिलेगा, 2 पुट करे तो 8 मिलेगा, है ना। 3 पुट करे तो 27 मिलेगा। तो इसका जो शेप है वो ऐसा हो जाएगा। मतलब आपको देखने में पता नहीं चलेगा कि मतलब वो हाइपरबोला है कि पैराबोला है, वो इक्वेशन से पता चलेगा हाइपरबोला है कि पैराबोला है। ऐसा आप x का वैल्यू बढ़ाते जाएगा तो ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है? मतलब अगर मान लो मैंने x इज इक्वल टू y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू n का ग्राफ ड्रॉ कर रहा है तो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x रेज टू 1 का ग्राफ ऐसा आएगा। तो x रेज टू 1 से थोड़ा 1.1 है तो ग्राफ ऐसा आएगा, 1.2 है तो ऐसा आएगा, 1.3, 1.4। समझा? ऐसा ऐसा ग्राफ का वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये सब बेसिकली हाइपरबोला ही है। उसमें से एक ग्राफ में n का वैल्यू 2 मिलेगा, उसको पैराबोला बोलता है। समझा? ओके और ऐसा n का वैल्यू मैंने कम होते जाएगा तो ग्राफ का शेप ऐसा मिलेगा। ऐसा करके करके एक पर्टिकुलर पॉइंट में इसका वैल्यू 1/2 मिलेगा। ठीक है? वो भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला। पैराबोला ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। समझा? बेसिकली ये दोनों सेम ही है। एक x एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ किया है, एक y एक्सिस के हिसाब से ड्रॉ किया है। एक ये ग्राफ ये दिखने में सेम ही है but one is with respect to x, another one is with respect to y. There is only one difference. Got it, sir. Thank you, sir. Got it, sir. Thank you. तो आप देखना इसका पावर क्या है। पावर का वैल्यू 2 आ रहा है तो मतलब y is directly proportional to x raised to 2 भी हो सकता है, x is directly proportional to y raised to 2 भी हो सकता है। समझा? वो दोनों बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला ही रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। Got it, sir. Thank you, sir. अगर और कुछ वैल्यू आ गया तो हाइपरबोला रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। So, sir, if the
exponent is 2, then it will be parabola, right? It will be parabola. Yes, yes. Okay. 2 और 1/2 बेसिकली सेम है बेटा. It depends upon आप लेफ्ट साइड में लिख रहा है, राइट साइड में लिख रहा है. Yes, yes. Thank you, sir. समझा. Thank you, sir. Thank you, sir. और कौन सा था? 29. 29. 9. हाँ. 29 में दिया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप इस. ये भी सेम है. बेसिकली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. तो अब देखना है एस और टी का बीच में कौन सा था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ओके, तो एस और टी का बीच में कौन सा ग्राफ का मतलब रिलेशन क्या आएगा वो देखना है. तो बोलो एस और टी के बीच में क्या रिलेशन है? S is equal to UT plus half AT square. S is equal to UT plus half AT square. So we can write the relation between them. S is equal to UT plus half AT square. अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो आप इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लो. तो S is directly proportional to T square हो गया. तो ये पावर देखना है. पावर का वैल्यू 2 है. तो कौन सा आएगा? पैराबोला. पैराबोला. Parabola. Yeah. Parabola. या पैराबोला. और बोलो कौन सा क्वेश्चन में डाउट है? 31. Sir, question 34. 31. Okay. The distance traveled by a particle and the corresponding time be laid off along y and x axis respectively. Then the correct statement of the following is. Actually, they are not mentioned. What about the condition for that? So they are given that there is a graph between distance traveled and corresponding time. तो distance और time का graph है. Along y-axis and x-axis corresponding, the statement of the following: a curve may lie in the 4th quadrant. Okay. So they are asking ये कौन सा डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में हो सकता है? अगर मान लो ग्राफ इधर हो सकता है ग्राफ 4th क्वाड्रेंट में हो सकता है? नहीं. क्यों नहीं हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव. नहीं, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, टाइम नेगेटिव. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है. हाँ. इसमें क्या हो गया? टाइम पॉजिटिव आ रहा है बट डिस्टेंस नेगेटिव आ रहा है. डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकता है. हाँ. बट अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया होगा तो ग्राफ पॉसिबल है. क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो 4th क्वाड्रेंट में नहीं आ सकता है. सेकंड नेक्स्ट वन दिया है कर्व्ड लाइंस इन द 1st क्वाड्रेंट. 1st क्वाड्रेंट में आ सकता है? Yes, sir. Yes, because Yes, sir. उसमें डिस्टेंस भी पॉजिटिव है, टाइम भी पॉजिटिव है. नेक्स्ट वन कर्व्ड Nice, sir. corresponding to a maxima. Peak corresponding to a maxima, कर्व में ड्रॉप as time passes. तो ये क्या बता रहा है कि टाइम आगे जाके मतलब 3rd में क्या बता रहा है कि ग्राफ ऐसा हो सकता है. ऐसा हो सकता है? नहीं सर. नहीं, बिकॉज ये डिस्टेंस का ग्राफ है. डिस्टेंस तो बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस कम नहीं होता है. हाँ. तो ये पॉसिबल नहीं है. सेकंड में क्या पूछा है कि आगे जाके डिस्टेंस कम हो सकता है. इज इट पॉसिबल? No. नो, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते जाएगा. तो ओनली दैट सेकंड वन ऑप्शन इज करेक्ट. ओके. समझ में बात? बिकॉज डिस्टेंस कभी कम भी नहीं होगा, डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट होता तो पॉसिबल है. और बोलो. Sir, 33. 33 it is given that the displacement time graph of a particle moving with respect to a reference point is a straight line. Displacement time graph of a particle, so we are having a displacement time graph and question में दिया है moving with respect to a reference point is a straight line. तो मान लो हमको एक straight line मिल रहा है, something like this. तो the reference point with respect to reference point, the reference point is a stationary with 0 velocity. तो straight line दिया है, तो straight line है, तो velocity क्या रहेगा? As it is a straight line, velocity uniform रहेगा. तो velocity uniform है, तो we can say that इसका जो acceleration है that will be equal to 0. Yes. तो इसका acceleration 0 हो सकता है, velocity
कांस्टेंट हो सकता है। Yeah, okay, okay. एनीवे तो Yes. पता है कि एक्सेलरेशन तो 0 है। रेफरेंस पॉइंट इज स्टार्टिंग विद 0 वेलोसिटी, मतलब 0 वेलोसिटी से स्टार्ट हो सकता है ना। एंड Okay, okay. रेफरेंस पॉइंट इज स्टेशनरी विद 0 वेलोसिटी, देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी। एंड acceleration of object is 0, yes, because velocity change नहीं हो रहा है। body moving with the uniform velocity, yes, वो भी possible है। and so we can say that all the above are possible। मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन बोला है तो ग्राफ ऐसा भी हो सकता है ना, Yeah. और ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर ग्राफ ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी 0 है। ग्राफ हाँ। ऐसा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन। बट स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ में भी एक्सेलरेशन 0 है, ये ग्राफ में भी एक्सेलरेशन 0 है, ये ग्राफ में भी एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन तो पक्का 0 ही होगा। Yeah. एंड उसके लिए पार्टिकल का वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ओके, सर और क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा आपका। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। सर स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है सर? सर दिख रहा है। दिख रहा है सर सर। क्वेश्चन 34। आप उसको स्लाइड करो तो दिखेगा। बोलो और बोलो। 30 हाँ देखिए 34 यूक्यू। क्वेश्चन नंबर 34 इट इज गिवन दैट फॉर अ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल not only straight line और फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन। no यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग है कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, हाँ यस सर कांस्टेंट ठीक है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन मींस इट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, हमेशा याद रखो। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इज इट करेक्ट? यस सर। यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो ग्राफ कैसे होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा या ऐसा होगा। वेलोसिटी पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर आप कुछ इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करेगा तो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया है द पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ पैराबोला। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पोजीशन टाइम ग्राफ पैराबोला हो सकता है? No, sir. No. नो सर। नो। या तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ग्राफ ऐसा हो रहा है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। यस सर। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा तो पैराबोला नहीं हो सकता है। पैराबोला क्या है, आप एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। नॉट ओनली पैराबोला, कोई भी कर्व्ड लाइन सब एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेशन करेगा। नेक्स्ट वन क्या दिया है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विद द टाइम एक्सिस। वो तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया, वो भी पॉसिबल नहीं है। यस सर। एंड फोर्थ वन पोजीशन टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। या पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। यस सर दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी है तो पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो ऐसा भी हो सकता है, वेलोसिटी नेगेटिव हो गए तो। सर तो दो ऑप्शन करेक्ट है। क्या बेटा? दो ऑप्शन करेक्ट है यहाँ क्वेश्चन में। देखते हैं ऑप्शंस में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वो सही है। और पोजीशन फोर्थ टाइम वाला ग्राफ भी इज, सही है। या फोर्थ भी सही है। यस यस 1 and 4 आर करेक्ट। ओके, 1 and 4 में वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। सर क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 36 9 या 1 minute। सर क्वेश्चन 30 बोलो। 37। So 36. या क्वेश्चन 36 में दिया है द वेरिएशन ऑफ अ क्वांटिटी A with a quantity B plotted in figure describe the motion of a particle in a describing the motion of a particle in a straight line. The quantity B may represents time and quantity A velocity if motion is uniform. अभी देखो, अगर A velocity time graph है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो, अगर वेलोसिटी टाइम Uniform ग्राफ है velocity. यूनिफॉर्म
Now velocity time graph. Acceleration. Acceleration. Yeah, Acceleration. uniform Acceleration. positive Positive acceleration. Acceleration. Positive acceleration. हाँ. Yeah, that represents that positive acceleration. तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्वांटिटी में represents time, मतलब x एक्सिस b में टाइम हो सकता है, तो a ऑप्शन Yes, पॉसिबल sir. है. नेक्स्ट वन क्या दिया है, a is velocity if motion is uniform. Motion is uniform means No. acceleration 0 होना चाहिए. Yes, sir. अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का हो जाएगा, तो बी गलत है. Yes, sir. B is not right. नेक्स्ट वन, क्वांटिटी ए डिस्प्लेसमेंट इफ मोशन इज यूनिफॉर्म. अगर ये वेलोसिटी नहीं है तो मान लो डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Constant. Well, uniform motion. या यूनिफॉर्म मोशन, तो सी हो सकता है, पॉसिबल है. Yes, sir. नेक्स्ट वन, क्वांटिटी ए इज वेलोसिटी इफ मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इज इट करेक्ट? Yes, Yes, sir. sir. यस यस. अगर ये वेलोसिटी है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, Yes, तो sir. डीबी हो सकता है. तो ए सी एंड डी, ACD is possible. ACD. First option. Yeah, first option. Sir, बोलो. so level 3, question number 17 Yeah. and 18. 37 में कुछ डाउट है? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. तो 37 में क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज गिवन. तो इन क्वेश्चन नंबर 37 डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन. तो ग्राफ का शेप है वो ऐसा दिया है. ओके, तो displacement time graph of a moving particle is shown in figure. The instantaneous velocity of particle is negative at point. तो बोला बेटा displacement time graph में velocity negative कब मिलेगा, when slope is Downward. yeah slope Coming is towards x-axis. Negative. Downward. downward upward Coming नहीं towards x-axis. Negative. बेटा, downward upward नहीं, क्या बोलेगा, theta is greater than Theta is greater than 90 degree. 90. तो पॉइंट सी देखो, पॉइंट सी में थीटा इज लेस देन 90, Less तो than वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? positive. पॉजिटिव. Positive. So whenever you are observing graph, always observe with respect to slope. Don't use any other thing. Yes, sir. And at point D, बोलो slope का वैल्यू क्या है? 0 degree. Theta क्या है? 0. 0 degree. What about velocity? Velocity क्या है? 0. Positive. है. 0. Positive. 0. Velocity 0. Yes, sir. And point E पे slope positive, slope theta Negative. 90 से Greater, ज्यादा है. More than 90. More than Negative. More than 90. तो velocity क्या हो गया? नेगेटिव हो गया. Negative. Yes, sir. Negative. Negative, yes. And at point F, theta is less than 90, so velocity is Positive. Positive. Sir, answer कौन is सा- E. Fourth one. E. Yeah, point E पे velocity negative मिल रहा है. समझा? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 38. question 39. 38 में डाउट है? Yes, Yes, sir. sir. And question number 38, the graph is given something like this: A, B, C, D. Okay. So which of the following option is correct for having a straight line motion represented by displacement time graph? तो इसमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट उल्टा दिया है. अब देखो डिस्प्लेसमेंट इसमें इधर दिया है, टाइम इधर दिया है. Yes, समझा? sir. हाँ. सो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, बट इसका जो हम लोग पहले जो देखा था, ऐसा कोऑर्डिनेट को उल्टा दिया है. तो वो आप याद रखना, इसका कोऑर्डिनेट मतलब पहले जो ग्राफ है ऐसे सबसे नहीं है, तो कोऑर्डिनेट को चेंज करके दिया है. अब देखते हैं इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली यू कैन रिप्रेजेंट इट समथिंग लाइक दिस. ये जो ग्राफ है वो ऐसा चल रहा है, ठीक है. ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये टाइम हो गया. अभी बोलो फर्स्ट ऑप्शन देखो, ऑब्जेक्ट में मूव विद अ कांस्टेंट इंक्रीजिंग वेलोसिटी फ्रॉम 0 to A and then move with a constant velocity. No, sir. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं क्या? No. नहीं, No, sir. No. No, sir. बिकॉज इसका जो स्लॉप है वो चेंज होते जा रहा है, ठीक है. तो ये जो स्लॉप है पहले पॉजिटिव वैल्यू था, फिर वो स्लॉप का वैल्यू नेगेटिव वैल्यू आ गया, ठीक है. अभी देखो यहाँ पे एक ग्राफ को उल्टा ड्रॉ किया है, ऐसा कुछ देख के डर कुछ कंफ्यूजन होने का जरूरत नहीं है.
आप खाली इतना देखना है, इधर अगर मैंने स्लॉप का वैल्यू लिखेगा तो क्या मिलेगा आंसर? T upon Tan theta? ds. या dt डिवाइडेड बाय ds, अच्छा, हाँ, और कुछ भी dt चेंजेस नहीं है। ds. तो हमको पता है ds by dt वेलोसिटी होता है, तो dt by ds क्या होता है? 1 by v. 1 by 1 v upon होता है, v. 1 by v होता है, और कुछ भी नहीं है। तो इधर पॉजिटिव है तो इधर भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी पॉजिटिव है। इधर नेगेटिव है मतलब वेलोसिटी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ठीक है, दैट्स ओनली वन डिफरेंस। एंड इधर वेलोसिटी क्या हो गया? इसका वैल्यू 0 आ रहा है। हां, नेगेटिव मतलब इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, हाँ. तो बाकी कुछ नहीं है। वो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव था, बाद में वेलोसिटी नेगेटिव आ गया। ओके, तो वेलोसिटी इज नॉट अ कांस्टेंट। नेक्स्ट वन दिया है, वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग velocity of object is increases uniformly. No sir, wrong है. No, वो इंक्रीज कर रहा था। कहाँ तक इंक्रीज कर रहा था? ये पॉइंट तक इंक्रीज कर रहा था, फिर क्या आ रहा है? वो डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। Yes sir. नेक्स्ट वन, एवरेज वेलोसिटी 0, इज इट करेक्ट? Yes sir. Yes, Because sir. Yes sir. इधर से Displacement is स्टार्ट 0. करके बाद में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। द ग्राफ इज इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं है। No sir. ग्राफ इम्पॉसिबल कब होता है? टाइम एक्सिस 2 पॉइंट में टच करेगा तभी इम्पॉसिबल होगा ना। Yes sir. Yes, sir. तो टाइम एक्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 2 पॉइंट में तो टच नहीं कर रहा है, तो ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर ग्राफ ऐसा दिया होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर टाइम है, अगर ग्राफ ऐसा दिया है तो इफ यू आर ड्राइंग अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस 2 पॉइंट में टच कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है। बट इधर ऐसा ग्राफ दिया नहीं है, टाइम एक्स का परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, 2 पॉइंट में टच नहीं करता है तो ग्राफ पॉसिबल है। Okay. Got it? Now I'll go for question number 39. 39. Yes sir. इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है एंड ग्राफ ऐसा दिया है। तो आप पहले देखो, पहले वेलोसिटी का वैल्यू पॉजिटिव था, अभी वो वेलोसिटी कम होते जा रहा है बिकॉज स्लोप Yes कम sir. होते जा रहा है। Decreasing. एंड इधर आके क्या हो गया? Velocity is 0 हो गया, 0 हो गया। है ना। Decreasing. तो वेलोसिटी कम होके वेलोसिटी 0 पे आ गया, Yes तो sir. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पार्टिकल इज मूविंग विद अ नेगेटिव Negative एक्सेलरेशन acceleration. और डिसेलरेशन। अब बोलो ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन Retardation. सही है? पार्टिकल स्टार्ट विद अ सर्टेन वेलोसिटी। यस, पार्टिकल इनिशियली कुछ वेलोसिटी से स्टार्ट किया था एंड certain velocity but motion is retarded and finally particle stops. Yes, Yes sir. This finally is velocity right. 0 हो गया ना। So option is the answer. Yes sir. First Yeah, one. yeah. समझ में आया? कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है। No sir. No. और 40 पे कुछ डाउट है? Yes, sir. 40 it is given that a uniform moving cricket ball turns back and hitting with the bat for a very short time interval. Show the variation of acceleration with time. Take Sir, first acceleration in option. backward direction as positive. तो हम लोग क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहले क्या करेगा? मान लो बॉल इस तरफ मूव कर रहा था, फिर हिट हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा कि डिसेलरेशन हो जाएगा। Yes sir. डिसेलरेशन करके रस पे आएगा, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन करेगा। तो फर्स्ट ग्राफ को देखो, एक्सेलरेशन हो गया, सबसे मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया, फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, Deceleration. डिसेलरेशन हो रहा है। सेकंड Yes, में क्या sir. क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सेलरेशन Sir, 0 हो उल्टा गया इसका. कर। हाँ, तो कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? First वाला. फर्स्ट वन पॉसिबल है। और सर हो गया लेवल 3 19 लेवल 3 का 19 Sir, level 3 17 and 18. ओके yeah level 3 take the question number 17 an elevator is going up the variation in velocity of elevator is as given in the graph what is the height to which the elevator takes the passenger is तो बेसिकली देखो क्वेश्चन में क्या दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको हाइट फाइंड आउट करना है मतलब बेसिकली क्या डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना Yes, sir. तो बेसिकली हमको क्या फाइंड आउट करना है एरिया अंडर दिस ग्राफ फाइंड आउट करो
तो बेसिकली क्या है, ए टोटल एरिया फाइंड आउट करना है, दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. हमेशा याद रखो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया क्या है, हाफ इनटू बेस क्या दिया है 2 दिया है, हाइट क्या दिया है 3.6 दिया है. 3.6. तो हाफ इनटू बेस इनटू हाइट क्या मिलेगा 3.6 मिलेगा इसका एरिया, प्लस नेक्स्ट का एरिया देखते हैं 2 to 10 मतलब बेस का लेंथ क्या हो गया 8 हो गया, इनटू हाइट क्या मिलेगा 2 नहीं 3.6 है ना. 3.6. हाँ सर 3.6. तो इसका वैल्यू मिलेगा विच इज इक्वल टू 8 इनटू 3.6 24. हो जाएगा 24. 28 आएगा ना, हाँ सर. 28.8. देन इसका क्या आएगा हाफ इनटू बेस का वैल्यू क्या आ रहा है 2 इनटू हाइट 3.6 so 3.6. Now we can add all these areas to get the resultant displacement. 3.6 plus 3.6 plus 26.8. तो क्या आ रहा है आंसर 28.8. 36. थर्ड ऑप्शन. सर हम लोग डायरेक्टली ट्रेपेजियम का एरिया नहीं ढूंढ सकते हैं. हाँ निकाल सकते हैं. मैं हाँ. ऐसा डायरेक्टली लिखा. सर 18th. सर आपने एक बार दिया भी था ये सब. The velocity time graph of a body moving in a straight line shown in figure, the displacement and distance traveled by the body in 6 seconds respectively. बेटा distance और displacement में क्या फर्क होगा, displacement में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा है ना, डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव है. डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव आएगा. तो देखो ग्राफ पहले ऐसा था, फिर ग्राफ ऐसा हो गया, फिर ग्राफ ऐसा हो गया. तो आप अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करेगा तो अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट में ये वैल्यू क्या होगा नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस में उसको भी पॉजिटिव लेगा. दैट्स ओनली वन डिफरेंस. समझा? यस सर. तो आप इसको देखो, इसका एरिया क्या रहेगा, इधर 4 आएगा और इधर 2 आएगा, तो इसका एरिया होगा +8. तो डिस्प्लेसमेंट इज +8. इसमें 8 2 है और इसका भी 2 है, तो इसका क्या रहेगा -4 रहेगा डिस्प्लेसमेंट में. इसका क्या आएगा 4 to 6 तो 2 हो गया 4 और ये एग्जैक्टली पता नहीं कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, शायद 2 रिप्रेजेंट कर रहा होगा. हाँ सर 2 और 2 तो इसका क्या रहेगा +4 लेगा. ठीक है. जब आप डिस्प्लेसमेंट का बात करेगा आंसर डिस्प्लेसमेंट का बात करेगा तो क्या होगा +8 -4 +4. तो आपका आंसर मिलेगा +8. जब आप डिस्टेंस का बात करेगा ओनली मैग्नीट्यूड को देखेगा तो क्या होगा 8 + 4 + 4, तो वी कैन राइट एज 16. समझा? यस सर. तो डिस्प्लेसमेंट होगा 8, डिस्टेंस होगा 16. डिस्टेंस में नेगेटिव नहीं लेगा हम लोग. ओके. यस सर. 21st. So 19th one. सर 19. 19th देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द मैक्सिमम हाइट टू इज तो अप टू सम पर्टिकुलर पॉइंट इट इज गोइंग टू पॉजिटिव है, उसके बाद क्या हो रहा है नेगेटिव हो रहा है ना. ग्राफ ऐसा ड्रॉ किया है, तो अप टू कौन सा पॉइंट है वो पॉजिटिव में है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ या अप टू 3 पॉजिटिव में चल रहा है, तो we'll find out only up to positive, only up to 3. The velocity time graph of shown vertically upward with the initial velocity 30, the velocity time graph upward direction is taken as a positive and downward direction is negative. What is the maximum height attained by the particle is? तो जब ऊपर जाएगा up to इधर तक, फिर क्या आ रहा है नीचे आ रहा है तो नेगेटिव में हो रहा है, तो पूरा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर रहा है. तो हमको क्या मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट मतलब वी विल ऑब्जर्व ओनली अप टू 3. समझा? ओके. बाद में क्या हो रहा है पार्टिकल नीचे आ रहा है इसलिए नेगेटिव हो रहा है, एंड जब इधर आएगा तो क्या वापस 0 पे आ रहा है. तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, हमको क्या ओनली पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम हाइट किधर तक उधर तक ही चाहिए.
तो बोले इतना पार्ट का एरिया निकालो, हाफ इंटू बेस इंटू half into हाइट, base हाइट into कितना, height. या हाइट का वैल्यू कितना 30 है, तो 15 इंटू 3, तो वी कैन राइट एज 45, राइट? Yes, sir. तो बाकी भी आप सॉल्व करके देखो, विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ओके? Yes, sir. थैंक यू। Bye, sir. बाय बाय। Bye, sir.